So hello everyone, this is our syllabus for what? Mathematical methods. This is our mathematical syllabus for mathematical physics. Mathematical physics. Mathematical methods. Alright. So this is paper 1. It consists of your 4 units. Alright. This first unit is of special function, in which we will study Legendre, Bessel, Hermite, Laguerre differential equation and its related polynomial. Alright, its related polynomial, generating function for them, and its orthogonality, generating function, and a recurrence relation for all these individually. Which one? Legendre, Bessel, Hermite, and Laguerre function. This is what I am saying. Now I need to connect all these. All right. Okay. So this is our first unit, which consists of what we will calculate. We will study special function. All right. Under which it consists of polynomials like Legendre, Bessel, Hermite, Laguerre differential equation, and its related polynomials, its integral form, its orthogonality, generating function, and recurrence relation. You might be studied this in BSc, and then after we will study the curvilinear tensor. All right, this you will also study in GTR or cosmology paper. Then your third unit, you had already learned this complex variable or complex algebra. All right, function, complexity, Cauchy-Riemann differential equation, Cauchy integral theorem, residue, Cauchy residue theorem. All these names are known to you. All right. At the last, integral transform. So maybe this will be new for you, or maybe you had studied in your BSc Fourier integral, Fourier transform, Fourier integral theorem, finite and infinite integral, Laplace, which include Dirac delta function and Green function, and some simple differential equation. If you have time, so we will solve some differential equation. So books regarding mathematical physics, I personally prefer B.S. Rajput. All right, this is it is available in our library too, and African, and one is H.K. Das. All right, mathematical physics. This is author. Book name is Mathematical. Is this visible to you? Yes, sir. Okay. So one another book, and these all are the books you can go through anyone. But personally, I prefer H.K. Das, B.S. Rajput, and African. These three books are more than enough. All right. So please, you can download. PDF version are also available. Right, PDF version of these books are also available. Or if you want to issue from library, come to the department and issue the books. Good. So this is our mathematical syllabus. Later I will teach you in this semester some part of electronics, communication. All right, digital communication. Right, digital communication. Maybe when the college will open, we'll study this. All right, the first preference is our mathematical method. Sorry, any question till now? Any question regarding syllabus, books, timing?
Anything? Any question? Hello, beta, you need to respond. No, sir. No, sir. Okay, so we will, I'll continue. Okay, so first is our first unit is unit first is our special function. Special function. All right. So why we have named special function? Because these are going to use in our applied physics, where we will use this function. This is going to use in our quantum mechanics, right? And we can say signal processing. Signal processing. So all these special function are going to use somewhere in our applied life. Okay, so when you will read, you will study the quantum mechanics, so you will see Hermite polynomial, Legendre polynomial there. So you should know what are the Legendre and Hermite polynomial. Then you can apply to direct problem to the quantum mechanics. Right. So one of our special function is a Hermite polynomial or a Hermite function. Hermite function. When it is in polynomial form, it is known as Hermite polynomial. Alright. So a differential equation, a special type of a differential equation are said to be Hermite when it is in a form of d square y upon dx square minus 2x dy upon dx plus 2ny is equals to 0. When a differential equation is in this form, in which form? Second order differential equation. Say this is equation 1, right? If a differential equation in a form, or we can say that this equation is known as equation 1. Equation 1 is known as Hermite differential equation. Differential equation. Alright. Is there any problem with my writing? No, sir. Clearly visible now? Yes, sir. Anything you don't get it, please you can ask question. Alright. Maybe my voice is not so clear just because of my cold and cough. Wait a minute. Priyanji Latwal. Alright. So this is the problem when you Deepika Joshi. Sorry. So when a second order differential equation is in a form of what? D square y upon dx square minus 2x dy upon dx plus 2ny is equals to 0, then this equation is known as Hermite differential equation or Hermite equation, or sometime Hermite equation. Alright. Hermite equation in a form of second order differential equation. That is equation. Some notification of what I don't know. Kuldeep Nayal has left the meeting. Good. Alright.
So the differential equation, when it is a form of second order differential equation, then the equation is known as Hermite differential equation. So now we need to calculate the solution for this differential equation. Okay, so the first procedure is, we just assume, let say y equals to sigma r tends to 0 to infinity ar within some coefficient x to the power k minus r be the solution. I had taken this equation in a decreasing form. Alright, how? Y, say if ar, say this is x3, then some coefficient x2 plus some coefficient, because I had taken k minus r in a decreasing form. Alright, so in some books you can find this can be written as k plus r, h plus r, anything. So don't get confused. You can take this differential equation in a decreasing order or an increasing order. So I had chosen, I found this is simple, so I taken the solution as in a decreasing order. So it's just an assumption, or we can say that this is our assumption, that the solution for this differential equation is y is equals to sigma r tends to 0 to infinity, where ar is some coefficient of x to the power k minus r. Alright, so this is our differential equation. Say this is equation 2. Alright, now if we need to calculate the value of y, we just need to put this thing in equation number 1. So we have y equals to, y is equals to sigma summation r tends to 0 to infinity ar x to the power k minus r. Alright, if we see, we have second order, single order, and the value of y. Alright, so we know y, we need to calculate dy upon dx and d square upon dx square. So on taking first differential equation, first derivative of this with respect to x, so we will say dy upon dx. Alright, sigma r tends to 0 to infinity, ar is coefficient. First time if we'll differentiate, it will come k minus r x to the power k minus r minus 1. Is there any confusion in this? No, sir. No, sir. Okay, na? We had did nothing. Just we know a solution. We want a solution for what? A Hermite differential equation, which is a special type of condition. So the first term is second derivative of y, and second term is your 2x multiple of first derivative of y. Then 2n is a some constant, and y is our variable. Alright, so now we need to calculate the solution for first second order derivative. So we had just assumed y is the solution for the differential equation 1. Alright, so we say we had taken this in a decreasing form. We have assumed some coefficient x raised to power k minus r. Alright, so the first derivative of this will be, as it is sigma tends to 0 to r, 0 to infinity, coefficient ar, then x, which is the power. Obviously we will say, if we need to calculate the value of x to the power 4, so it is 4x x to the power 3. Alright, Yes, sir. this is good. Okay, na? Yes, sir. So we had Yes, just sir. did it in generalized form. We had taken the power outside, just k minus r to the power k minus r minus 1. For the second time derivative, if I need to calculate the second time derivative of y, then this is 0 to infinity, ar is सर सॉरी cost. फॉर इंटरप्शन सर थोड़ा बैक करेंगे प्लीज बोलो बेटा, बताओ थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना था बेटा, वो बाद में थोड़ा लेते सा रहना, बैक मतलब बाद में ले लेना, ठीक है?
वो लास्ट पे ले लेना, मेरी यूट्यूब पे जाएगी वीडियो भी, ठीक है। आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, दोज हु हैवंट अटेंडेड दिस, so you can check it later, okay? So if you don't want to take the screenshot, so it is going to upload in my YouTube channel, you can find it, okay? Okay, Kuldeep? Okay, sir. Thank you, sir. So if we need to calculate what second time derivative of y, then AR is coefficient, it will copy the same k minus r, and this time this becomes k minus r minus 1 x to the power k minus r minus 2. Good. Yes, sir. Now we have the value of d square upon d2y upon dx square and dy upon dx and y. Just substitute these three value in equation number 1. Good. So what is equation number 1? Equation number 1 is d square upon dx square minus of 2x dy. Okay, just let me write with a different color that you can. This is our generalized differential equation, 2x dy upon dx plus 2n by which is equals to 0. This is our Hermite equation. Now we know the value of what? We know the value of d square upon y. Just substitute this value here. This becomes sigma r tends to 0 to infinity ar k minus r minus 1 x to the power k minus r minus 2. Good. Minus of 2x. What is dy upon dx? Dy upon dx is this. So dy upon dx is sigma tends to 0 to infinity, we can say summation ar k minus r x to the power k minus r minus 1. Good. Third term is your just add plus 2n. Y was your summation r tends to 0 to infinity sorry 0 to infinity ar x tends to k minus r. This is the value of y, which is equals to 0. Good. We had taken the solution in decreasing term, so the first term must be of maximum power. So if we check in this equation, k minus r, power of x to the power of x k minus r is the highest power. Deepak Chandra wants to add. Okay. Alright. X to the power k minus r is the maximum power. So I need to write first term. Alright. Where I can find the value of x to the power k minus r? In this term. And if I'll see here, if I just multiply x to this term, so the term the power of x becomes k minus r, because we have one power here, and if I multiply just this becomes k minus r, minus minus cancel out, so the power becomes k minus r. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So I can find k minus r, x to the power k minus r in two terms. I just write down negative sign outside. Say this is sigma r tends to 0 to infinity, common for both, and 2 is common for both. AR is a coefficient, common for both, and here we have what? K minus r minus n. Okay, this n I had just minus sign, I had taken the minus sign common. If I just multiply this negative sign, this becomes n positive with the same term. So the left quantity is x to the power k minus r. Is it okay?
Now these two terms are just combined. Any problem till now? Hello. हेलो. सर ये जो ब्रैकेट में लिखा है एक बार और समझा दीजिए इसको. कौन सा वाला? ये वाला बेटा. हाँ ब्रैकेट में k-r इसमें ऊपर हमने ये कॉमन लिया. हाँ k-r. देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो x हमने क्या लिखा है, y इक्वल्स टू हमने लिया है सिग्मा r टेंस टू 0 टू इन्फिनिटी ar x टू द पावर k-r. डिक्रीजिंग फॉर्म पे लिया ना हमने. ठीक है, आप k प्लस करके भी ले सकते थे इसमें. समझ में आ रहा है? तो हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले रखा है, तो मतलब जो पहला टर्म होगा सबसे बड़ी पावर होनी चाहिए x की. तो अगर मैं k-r हुआ हाँ, तो तो इस अकॉर्डिंग मेरी जो इस इक्वेशन में x टू द पावर k-r मैक्सिमम पावर है. तो एक टर्म तो मुझे दिख रहा है कि k-r यहाँ पर दिख रहा है. यस सर. दूसरा टर्म मैं देख सकता हूँ कि x की पावर एक यहाँ पर 1 है. अगर कहीं पे लिखा नहीं है तो 1 ही होगी उसकी पावर. x यहाँ पर भी है. अगर इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर ऐड हो जाएंगी. तो पावर ऐड होंगी तो क्या होगा, k-r बचेगा सिर्फ यहाँ पर. ठीक है. यस सर. तो इन दो टर्म्स में मुझे क्या दिख रहा है, x की पावर k-r दिख रही है. ठीक है. तो मैंने वही किया, इन दोनों टर्म्स को मर्ज कर दिया. तो मैंने मर्ज कैसे किया, नेगेटिव साइन मैंने कॉमन ले लिया. ठीक है. Yes, अगर sir. मैं नेगेटिव का कॉमन करूँ तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला जो हुआ है बाद में. यस सर. ठीक है ना. तो मैंने क्या किया, सिग्मा तो मेरा समीशन साइन तो वैसे ही रहेगा, नेगेटिव मैंने कॉमन ले लिया. 2 दोनों में कॉमन है, मैंने बाहर ले लिया. ठीक है. यस सर. AR कोफिशिएंट दोनों में कॉमन है, मैंने बाहर ले लिया. जो Yes, sir. ब्रैकेट में क्वांटिटी बची है वो क्या बची, यहाँ बची k-r, एज इट इज लिख दी मैंने. मैंने जस्ट बिकॉज नेगेटिव साइन कॉमन ले रखा तो ये नेगेटिव, यहाँ जो n जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया अंदर. ठीक है. यस सर. क्लियर सर. हाँ, तो अब x की, अब जो ये कोफिशिएंट किसका था, x की पावर k-r का था. यस सर. ठीक है. कुलदीप ही हो ना आप? नहीं, रविंद्र. रविंद्र. ठीक है रविंद्र. सर. ठीक. Alright. Now the next remaining term is our this term. Which one? This term. So I just write this as plus summation r tends to 0 to infinity ar k-r k-r minus 1 x to the power k-r minus 2, which is equals to 0. Okay. Is there any problem till now? No sir. Okay. No, sir. Okay. I just multiply -1 both the side, just to remove this negative sign. Okay. So tends to 0 to infinity 2 ar. This r is in coefficient. Okay, subscript. This ar is in subscript ar, like this. Okay, this is not in a multiple. K minus r minus n x to the power k minus r. I just multiply with negative sign, so this quantity becomes negative. Sigma r tends to 0 to infinity ar k minus r minus 1 x to the power k minus r minus 2, which is equals to 0. So this is the final equation. Say this is equation 3. Good. Is there any problem? No sir. If I need to calculate the coefficient of, say I need to calculate the coefficient of x to the power k. This is possible only when r is equals to 0. In this equation, if I substitute r equals to 0, then this term becomes what? X to the power k. Good. Is there any problem, beta? No sir. If I need to calculate what? The coefficient of x to the power k. Only I need to calculate the coefficient of x to the power k. So I need to put here what? R equals to 0. Then this term becomes x to the power k only.
अरे ठीक है ना, अगर r इक्वल टू 0 हो जाएगा तो एक x की पावर क्या हो जाएगी ये बस। Yes, sir. Yes, sir. दैट मीन्स r इक्वल टू 0 रखना है हमने, सो 2a0, इफ r इक्वल टू 0 सो ar इज a0 नाउ। गुड, अरे सही है ना। यस सर। Yes, sir. सिर्फ पहले वाले टर्म पे देखेंगे ना, इस टर्म पे देखना है ना कोफिशिएंट हमें, ठीक है। तो ये कितना हो गया, k माइनस दिस टर्म 0, तो आई जस्ट रिमूव दिस वन, इस टर्म पे कहीं पर नहीं है। अरे r इक्वल टू 0 भी रखूंगा तो यहाँ पर k माइनस 2 हो जाएगी पावर, इसलिए नहीं लिया यहाँ पर, ठीक है। यस सर। समझ में आ रहा है ना। अगर मैं क्या लूँ यहाँ पर, अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पर सर ने r इक्वल टू 0 भी लिखा तो क्या हो जाएगा, k की पावर क्या हो, x की पावर क्या हो जाएगी, k माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है भाई। यस सर। तो सिर्फ किस टर्म से मिलेगा, फर्स्ट टर्म से मिल जाएगा। क्या, अगर कोफिशिएंट देखना है हमें x की पावर k का, तो 2a0 सर a0 k माइनस n इक्वल्स टू 0, राइट हैंड साइड 0 हमारा, बाकी ये टर्म्स तो मिलेगा नहीं हमें, ठीक है। X की पावर k नहीं ली। अरे कोफिशिएंट तो देख रहे हैं बेटा उसका, अच्छा अच्छा, यस सर। ठीक है। कौन थे आप? सलोनी। हाँ चलो नहीं, क्योंकि कोफिशिएंट लिखा ना बेटा, अगर कोफिशिएंट नहीं लिखा होता Yes, तो थोड़ा पूरा लिख दे हम, ठीक है। इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे, इस इक्वेशन में Okay. सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं वहाँ पर r की वैल्यू, हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट समझते हो ना। यस सर। हाँ, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 4, समझ में आ गया। तो हमने क्या सिर्फ कोफिशिएंट निकालना है उसमें, तो हमने क्या लिया, ये लिया पहला टर्म a नॉट कैन नॉट बी इक्वल टू 0, दिस इज मैंडेटरी, ओके। कि हमारा जो पहला टर्म है, क्योंकि पहला टर्म रहेगा, ये 0 नहीं हो सकता किसी का भी, तो उसके लिए क्या होगा, पॉसिबिलिटी क्या है फिर अब, k सॉरी k माइनस एन इक्वल टू 0। अरे यही तो है इसकी कंडीशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई होने के लिए क्या, आइदर a शुड बी 0 और k माइनस एन शुड बी 0। अरे यही तो होना चाहिए, तभी Yes, तो sir. ये Yes, इक्वेशन sir. सेटिस्फाई होगी ना। सो आई से a नॉट कैन नॉट बी 0, देन k माइनस एन इक्वल्स टू 0, देन k इक्वल्स टू n। समझ में आ गया, Sir. ठीक है। ऐसी मैंने बोला था डिक्रीजिंग ऑर्डर में निकालना है, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में निकालना है तो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ इसका अगला नेक्स्ट कोफिशिएंट क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर k माइनस 1 आएगा, आना चाहिए आना चाहिए ना। यस सर। हाँ, यस सर। तो k माइनस 1 कब आ सकता है भाई, अब जब r की वैल्यू यहाँ पर क्या हो, जब r One. की 1 हो। अगर r की वैल्यू यहाँ पर 1 हुई तो k माइनस 1 हो गया, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, अगर 1 रखोगे तो 3 हो जाएगा यहाँ पर, अरे हाँ। ठीक है। Yes, sir. हाँ, ये कितना हो जाएगा, अगर सिर्फ हमें फिर इसी टर्म्स में मिलने वाली है हमें, और यहाँ पर नहीं मिलेगा क्योंकि जैसे यहाँ पर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, k माइनस 3 हो जाएगा। अरे ठीक है, यस सर। समझ पा रहे हो ना कि कोफिशिएंट क्यों निकाल रहे हैं, जस्ट बिकॉज इस जनरलाइज इक्वेशन यहाँ रखने के लिए। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो पहला टर्म क्या होगा, k माइनस 1, k माइनस 2, k माइनस 3, अगर इस इक्वेशन को लिखूँ मैं, और इसको जब मैं ये निकाल क्यों रहे, समझ पा रहे हो ना, ये ऐसे ही नहीं निकल रहा है बेटा। y इक्वल टू क्या है, समेशन फॉर्म में है, तो अगर r की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, 0 से इन्फिनिटी जा रही है ना। Yes. हाँ, तो अगर r से क्या बोलते हैं, r 0 से इन्फिनिटी जा रही है तो पहला टर्म 0 हो जाएगा, तो पहला टर्म क्या होगा, a0 x की पावर k माइनस 0 का तो k आ जाएगा पहला टर्म, समझ में आ रहा है। Yes, sir. प्लस दूसरा टर्म क्या होगा, अब 1 की r की वैल्यू कितने की 1 हो जाएगी, तो a1 x की पावर कितना हो जाएगा, K minus 1. k माइनस 1, समझ में आ रहा है। तो ये जो कोफिशिएंट निकालना है इनकी वैल्यू निकालना है भाई हमें, ये इसके बाद क्या आ जाएगा, a2 k की पावर x की पावर k माइनस 2, ये तो ये चीज़ें निकाल रहे हैं, बाद में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन पे। अब आ रहा समझ में, कुछ कोरिलेट कर पा रहे हो, Yes, sir. यस सर। आ रहा है ना। यस सर। ऐसा तो नहीं लग रहा कि कुछ कि नया आ गया, आ गया समझ में, Yes, sir. गुड। अब हमने सेकंड टर्म निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ
k माइनस वन। तो k माइनस वन हमें कहाँ मिलेगा? सिर्फ इस टर्म से मिल सकता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? r की वैल्यू वन, r की वैल्यू वन, r की वैल्यू वन यहाँ पर। बाकी इस टर्म से तो r3 हो जाएगा ना, ये k अगर वन रखूंगा तो k माइनस थ्री हो गया, ठीक है। ये समझ में आया क्या बोला मैंने? अगर मैं r इक्व टू वन रखता हूं तो k माइनस वन मिल रहा है यहाँ पर पहले टर्म्स में, ठीक है। अरे बोलो भाई। यस सर, यस सर। और यहाँ क्या, अगर वन रखूंगा तो कितना हो जाएगा? ये ऐड हो जाएंगे, माइनस थ्री हो गया है k माइनस थ्री। तो यहाँ से तो पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ फर्स्ट टर्म से मिलेगा हमें। तो क्या हो जाएगा वो हमारा? जस्ट पुट k इक्वल्स टू वन, सॉरी r इक्वल टू वन, r इक्वल्स टू वन, जस्ट पुट r इक्वल्स टू वन। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका टू, r यहाँ पर था तो वन हो गया r, ठीक है। ये कितना हो गया? r माइनस सॉरी k माइनस r था तो k माइनस वन माइनस n हो गया, इक्वल्स टू जीरो। So to satisfy this condition, either a1 must be 0 or k minus n minus 1 is 0. So this is not possible. ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना भाई। अगर इक्वल टू जीरो हुआ तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वन माइनस एन, वन प्लस एन सॉरी। तो यहाँ पर से क्या आएगा? जस्टिफाई a1 हमारा क्या हो जाएगा? a1 कितना आ जाएगा? a1 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ऐसी आप चाहो तो इंडिविजुअल हर वैल्यू की निकाल सकते हो। कैसे? k माइनस टू, k माइनस थ्री। और सर ये जो k माइनस वन माइनस n इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ से k की वैल्यू वन प्लस n आएगी, तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा ये? कैसे होगा? ऊपर को भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए ना, फिर सारी पूरी सीरीज में सेटिस्फाई करना चाहिए ना भाई, अच्छा ठीक है। और ये जो a1 इससे पहले जब हमने यहाँ पे r इक्वल टू जीरो रखा था वो तो पहला टर्म होता है, हमने- वो ना वो जनरलाइज जो मैंने पहला रखा ना a इक्वल टू जीरो, वो सब में कंफ्यूजन रहता है। वो क्या बोलते हैं, हर्माइट की कंडीशन ही है कि उसको हम पहले टर्म को हम निगेटिव, मैं बाद में लिखाऊंगा इसको, ठीक है। ठीक है। वो पहला टर्म इसीलिए नहीं लिखा जस्ट बिकॉज कि वो उसकी कंडीशन होती है कि फर्स्ट टर्म कैन नॉट बी जीरो, ठीक है। ये कंफ्यूजन सर। रहता है। अब वो कुछ रूल्स बने हैं उनके ड्राइव करने के बाद, तो वही बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। आइदर आई कैन कैलकुलेट फर्दर x to the power k minus 2, k minus 3, or I simply can calculate what? Coefficient of x to the power k minus r. जनरलाइज निकाल देता हूँ, ठीक है ना। तो k माइनस आर कैसे होगा? देखो k माइनस आर कैसे होगा? पहले टर्म्स तुमको एज इट इज मिल जाएगा, ये दिख जाएगा। तो k माइनस आर का चाहिए ना कोफिशिएंट, तो ये है k माइनस आर का कोफिशिएंट, 2ar k माइनस आर माइनस n, ठीक है। ठीक है भाई। यस सर। ये वाला टर्म भी दे सकता है मुझे k माइनस आर। कब देगा मुझे? जब मेरा r क्या होगा? r माइनस टू। यहां पर देखना, हाँ क्या है? k इक्वल टू r माइनस टू है ना। मुझे क्या वैल्यू लानी है? k इक्वल टू k माइनस आर लाना है ना यहाँ पर। अगर मैं r को क्या ज्यूम कर लूँ? अगर r को मैं r माइनस टू कर लूँ तो यहाँ पर रखता हूँ मैं, ठीक है। इसी ऊपर पे रखता हूँ तो कितना जाएगा? देखो k माइनस का साइन है, r माइनस टू हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? k माइनस आर माइनस माइनस प्लस माइनस टू कैंसिल आउट, कितना बच गया? k माइनस आर हो रहा है। अरे जनरलाइज इक्वेशन है ये समझ पाए? Yes, sir. अगर मैं यहाँ पर r को इस पॉइंट पे r को क्या लिखूं? r माइनस टू लेके चलूं तो मुझे ये वाला टर्म क्या दे देगा? x की पावर k माइनस आर दे देगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर क्या रखना है? पहला टर्म तो मुझे एज इट इज दे देगा, मेरे को सीधे सीधे लिखना है। पहला टर्म क्या लिखना है मुझे? 2ar k माइनस आर माइनस n, ठीक है। माइनस का साइन, ये वाला साइन। अब r के बदले क्या लिखना है मेरे को? r माइनस टू लिखना है, ठीक है। यहाँ पर r के बदले r माइनस टू लिखना है, a r माइनस टू। दूसरा क्या करना है? k माइनस आर है तो कितना हो जाएगा? k माइनस आर प्लस टू। तीसरा क्या टर्म है यहाँ पर? k माइनस आर माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा? k माइनस आर माइनस वन है तो प्लस टू है, तो कितना हो जाएगा? प्लस वन। अरे ये तो होगा, कितना है? k माइनस आर माइनस वन है ना, k माइनस आर माइनस वन है। सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, r के बदले r माइनस वन रखना है मेरे को,
तो कितना होगा k माइनस आर प्लस 2 माइनस 1, तो कितना होगा k माइनस आर माइनस प्लस 1, वही लिखा है मैंने यहाँ पर। ठीक है, अरे सही है इतना बेटा, आदत डाल लो ये। यस सर। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान देना, वापिस से रिकॉल करना, समझ में आ जाएगा। सो दीज आर द कोफिशिएंट फॉर k माइनस आर विच इज इक्वल टू 0। ओके, तो अभी नेगेटिव साइन है, इसको मैं जस्ट अगर ऐसे रिमूव करूँ तो कितना हो जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो ये इक्वल टू में हो जाएगा। ठीक है, अरे समझ में आया ना क्या किया मैंने, ये वाले टर्म को राइट हैंड साइड ले गया तो प्लस हो गए। अगर Yes, मैं यहाँ sir. से ए आर की वैल्यू निकालूँ, ए आर की वैल्यू निकालूँ तो कितना आ जाएगा वो, के माइनस आर प्लस 2 के माइनस आर प्लस 1 होल अपॉन ये कितना आ जाएगा, के माइनस आर माइनस एन, किसके साथ, मल्टीपल ऑफ ए आर माइनस 2। ये मैंने यहाँ लिख दिया। अच्छा 2 का साइन भी आएगा एक, ये 2 भी तो रहा, डिनोमीटर में आ गया। सो ए आर की वैल्यू कितने आ गई, ए आर की वैल्यू कितनी आ गई, अरे आर की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई, के माइनस आर प्लस 2 के माइनस आर प्लस 1 अपॉन मल्टीपल ऑफ 2 के माइनस आर माइनस एन ए आर माइनस 2। फॉर पहली इक्वेशन में देखो हमने क्या निकाला था, के इक्वल टू एन निकाला था, के की कितनी वैल्यू निकाली थी, फॉर के इक्वल टू एन, तो यहाँ कितना हो गया, ए आर कितना हो गया, एन माइनस 2 प्लस एन माइनस आर प्लस 2 एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन 2 एन माइनस आर माइनस एन, यही तो हुआ, ए आर माइनस 2, इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा, ए आर वैल्यू बची है कितनी, एन माइनस आर प्लस 2 एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन माइनस 2 आर मल्टीपल ऑफ ए आर माइनस 2। ठीक है भाई, यस सर। ठीक है ना। Yes, अब sir. मेरे को, Yes. अब मुझे कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है, आइदर आई कैन पुट द वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 0 हियर, ठीक है, आर की वैल्यू 0 को तब भी निकाल सकता हूँ, ठीक है, लेकिन निकालूंगा नहीं क्योंकि, ठीक है, हमने डिफाइन कर रखा है वहाँ स्टार्टिंग में। तो अब क्या करना है हमें, आर इक्वल्स टू 2 के लिए, आर इक्वल्स टू किसके लिए वैलिड होगा, आर इक्वल्स टू 2 के लिए। इफ आर इक्वल्स टू 2 तो कितना हो जाएगा, क्योंकि हमने 0 और 1 के लिए निकाल रखा है वहाँ पर, ठीक है ना। अब आर की वैल्यू क्या रखनी है हमें, 2 रखनी है, इसके बाद आर की वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ए 2 कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा एन माइनस 2 प्लस 2 एन माइनस 2 प्लस 1, आर की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, 2 मल्टीपल 2 2 माइनस 2 हो गया इतना। अरे आर की वैल्यू जस्ट, तो जो ए टू कोफिशिएंट है, ए टू कोफिशिएंट है कितना आ गया हो, ये कैंसिल आउट, तो कितना हो गया एन, ये हो गया एन माइनस 1, ये हो गया नेगेटिव साइन ऑफ 2 मल्टीपल 2 ए 0, ए टू किस टर्म्स में आ गया, ए नॉट के टर्म्स में आ गया, ठीक है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सीरीज फॉर्म पे लाना है मेरे को, ठीक है, बाद में आइदर यू कैन मल्टीप्लाई 4 ईयर और बाद में फिर दिक्कत हो जाएगी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट इसको समीशन के फॉर्म पे लाना है तो इसको एज इट इज छोड़ रहा हूँ। अब आर इक्वल टू 3 है, इफ आर इक्वल टू 3 है तो क्या रखो, यहाँ पर रखनी है खाली आपको, ठीक है ना। आर इक्वल टू 3 के लिए कितना हो जाएगा, देखो ए थ्री कितना था, ए थ्री कितना था, एन माइनस 3 प्लस 2 एन माइनस 3 प्लस 1, अरे समझ में आ रहा है बेटा, माइनस 2 मल्टीपल 3 ए 3 माइनस 2, ऐसे तो था, इस वैल्यू में आर की वैल्यू मैंने खाली 3 रख दिया, सही है। यस सर। तो कितना हो गया, ए 3 कितना हो गया, एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन माइनस 2 3, ये कितना हो गया, ए 1 हो गया यहाँ पर, ठीक है। यस सर। लेकिन Yes, ए 1 क्या था हमारा, देखो ए 1 इज 0, तो अल्टीमेटली कितना है, ए 3 इज 0 अगेन, क्योंकि ए 1 0 है तो ए 3 0 हो जाएगा।
तो क्या होगा, जितने भी ऑड टर्म्स A1 इक्वल्स टू 0 विच इज इक्वल्स टू A3 विच इज इक्वल्स टू A5 प्लस A7, जितने भी ऐसे टर्म्स आते रहेंगे वो सब क्या होते रहेंगे, 0 0 होते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि A3 के मल्टीपल पर आएगा, फिर दूसरा A5 के मल्टीपल में आएगा, A5 वाला A3 के मल्टीपल में, A7 वाला A5 के मल्टीपल पर आएगा। ठीक है, अगर मैं R की इक्वल्स टू 4 निकालूँ, ठीक, तो कितना हो जाएगा, ये आएगा आपका A4, वो जनरलाइज फॉर्मूला कितना था, जनरलाइज था आपका n माइनस आर प्लस 2 n माइनस आर प्लस 1 और माइनस 2, इतना था। ठीक है, और ये कितना था, AR माइनस 2। ठीक है, अब R की वैल्यू 4 रखनी है अब। ठीक है, n माइनस 4 प्लस 2 n माइनस 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 4 न 4 माइनस 2। ठीक है भाई, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका कितना, n माइनस 2 n माइनस 3। ठीक है, अपॉन ये कितना हो गया, 2 माइनस 4, और ये कितना होगा, A2। ठीक है, अगर मैं A2 देखूं तो A2 कितना निकाला था मैंने, इतना आया था। A2 कितना आया था हमारा, ये कितना आया भाई, A2 n माइनस 1 माइनस 2। हाँ n into n minus 1 हाँ, ये आ गया है n माइनस 3, ये होगा n माइनस 1 इंटू n, यही था, अरे ऐसे ही तो था, ये yes sir n माइनस 1 निगेटिव का साइन है, yes sir नेगेटिव 2 4 और ये कितना, नेगेटिव 2 2 2, ऐसे ही तो था, yes sir अरे ऐसे ही था ना, इन टर्म्स Yes, ऑफ sir. A नॉट आ गया है, A4 इन टर्म्स ऑफ A नॉट। ठीक है, तो इसको सिंपली फॉर्म n माइनस 1 ऐसे लिख सकता हूँ मैं, n माइनस 3 सॉरी n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन ये कितना हो गया, माइनस वन की पावर 2 लिख सकता हूँ इसको, एक माइनस 1 है, एक माइनस 1 मल्टीपल में है, ठीक, ऐसा लिख सकता हूँ। yes sir हाँ yes sir ठीक है, और ये कितना, ये 2 और 2 की पावर ऐड क्या बोलते कितने हो जाएगी, ऐसे लिख सकता हूँ, इस 2 और इस 2 को। yes sir ठीक है, फिर कितना रेस्ट कितना बचा, ये 2 मल्टीपल बचा, मल्टीपल ऑफ 4, ऐसे ही तो बचा है इन टर्म्स ऑफ A नॉट। ये ऐसा क्यों निकालना, जब जनरलाइज करूँगा तब निकालने का, क्योंकि ये किसके पावर में, R की पावर में आ जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो ये भी R के फॉर्म पे आ जाएगा। अगर ऐसी 8 टर्म्स लें, अगर हम 8 टर्म्स तक जाऊँ तो कितना हो जाएगा, ये पावर बढ़ते रहेगी ना, अभी 2 आए फिर 4 आएंगे, ऐसे समझ में आ रहा है, yes ये sir समझ में आया ना, yes इसको sir सिंप्लीफाई कैसे किया है मैंने यहाँ, इसको ये कैसे लिखा है, yes समझ sir में आ गया ना। हाँ, yes sir बस ये जितनी वैल्यूज हैं कोफिशिएंट की हमने कहाँ रखनी है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 क्या थी हमारी, इक्वेशन 2 थी हमारी y इज इक्वल्स टू सिग्मा r टेंस टू 0 टू इन्फिनिटी, कोई अभी और आ रहा है ऐसा ही पढ़ने, विष्णु प्रिया सॉरी, y इक्वल्स टू इतना था, क्या था यहाँ पर, AR और क्या था, x टू द पावर k माइनस आर। ठीक है, अब इसको अगर हम एक्सपेंड कर दे तो कितने किस फॉर्म पे आ जाएगा भाई, अच्छा पहले इसको रख लो, k की कौन सी वैल्यू की, k की n वैल्यू के लिए निकाल लेते हैं ना हम, यही तो आया था वहाँ पर, तो इसको जस्ट लिखो सिग्मा r टेंस टू 0 टू इन्फिनिटी AR x की पावर n माइनस आर, गुड, और इसको एक्सपेंड कर दो, अगर इसको एक्सपेंड करूँगा तो कितना होगा, y की वैल्यू A0 x की पावर n, R0 पहला टर्म 0 हो जाएगा जो मैं लिखा रहा था, प्लस A1 x की पावर कितना हो जाएगा, n माइनस 1, प्लस A2 x की पावर n माइनस 2, प्लस A3 x की पावर n माइनस 3, प्लस A4 x की पावर n माइनस 4। अरे ठीक है, इतना ऐसी सीक्वेंस चलता जाएगा। ठीक है, आई नो A1 इज इक्वल्स टू 0, A3 इक्वल्स टू A5 A7, जितने भी और टर्म्स है वो मेरे 0 होने वाले। ठीक है, तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये सारे टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये मैं इसको हटा दूँ, रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्यों हटा रहा हूँ मैं,
तो जब हमारे पास बचेगी इक्वेशन वो कितनी बचेगी, a0 x की पावर n प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस a4 x की पावर n माइनस 4। अरे समझ में आ रहा है? ऐसे a6 बचेगा, फिर x8 बचेगा, ऐसे समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ। Yes, sir. अब मैंने देखो हर एक टर्म a0 a2 a4 किस टर्म्स में निकाला है, a0 के फॉर्म पे निकाला। देखो a4 भी a0 के टर्म्स में है, a2 भी a0 के टर्म्स में है। देखो ठीक है, तो a0 कॉमन हो सकता है यहाँ से। अरे हो जाएगा ना, अगर मैं सब्स्टिट्यूट पर, या तो मैं हर एक की वैल्यू रख लूँ, या ऐसे समझ में आएगा, तो मैं ऐसे समझ में नहीं आएगा। रुको, Yes, sir. a0 Yes, रखा sir. x की पावर n, a2 कितना था n माइनस 1 अपॉन 2.2 निगेटिव का, a नॉट x की पावर n माइनस 2 प्लस a4 कितना आया था अभी, a4 था आपका n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 माइनस 1 की पावर 2 2 की पावर 2 2 और 4, ऐसे ही तो कुछ आ रहा था भाई। a नॉट x की Yes, sir. पावर n माइनस 4 प्लस सो ऑन चलता रहेगा ऐसे। ये दिख नहीं रहा है ना, इतना दिख रहा है? यस सर। तो Yes, देखो sir. ईच टर्म आर इन टर्म्स ऑफ a नॉट, तो आई कैन टेक a नॉट एज कॉमन। कॉमन निकाल लूं मैं, यस सर। a नॉट को Yes, कॉमन sir. कर दिया। तो पहला टर्म क्या बचा है यहाँ पर, x की पावर n माइनस ऑफ, ये माइनस यहाँ लग गया, माइनस 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 n माइनस 1 अपॉन 2.2 x की पावर n माइनस 2। ठीक है, इतना सही है भाई? Yes, sir. प्लस, अब देखो ये क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 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 लिख दिया मैं। तो ठीक है, ये कितना हो गया, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, ये कितना होगा, इसकी पावर कितना होगा, 2 की पावर 2 4, x की पावर n माइनस 4 प्लस वन चलता रहेगा ऐसे। ठीक है, ये क्या है, y इक्वस्ट, इतना समझ में आया? अब हमने लिखना है, अब जो लिखना है वो सुनो। हमने क्या लिखना है, इफ a नॉट इज 2 to the power n, if a नॉट इज 2 to the power n, समझ में आ रहा है? इफ a नॉट क्या है, 2 to the power अगर होता है, then the then this solution is known as Hermite polynomial. Hermite polynomial. And it is denoted by, अरे राइटिंग सही समझ में आ रही है ना, ऐसा तो नहीं कि दिक्कत है? Yes, sir. समझ आ रही है. डिनोटेड बाई h, मैंने आप लोगों को पढ़ाया ना बीएससी में? यस सर। ठीक है, फिर तो Yes, आदत है आप sir. लोगों को, ठीक है ना? Yes, sir. इट इज डिनोटेड बाई एच एन एक्स। कब एच एन एक्स बोलेंगे हम इसको, जब ये कितना है 2 to the power, मतलब 2 raised to the power n हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोला कि अगर a नॉट की वैल्यू क्या है, 2 to the power n है, then this solution, which solution, this solution is known as Hermite polynomial and it is denoted by HNX। समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा, जो HNX हो जाएगा आपका, वो कितना हो जाएगा आपका HNX कितना हो जाएगा, 2 the power n, एक a नॉट के लिए 2n है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, xn माइनस n माइनस 1 अपॉन 2.2 xn माइनस 2 प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन 2 2 4, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, x to the power n माइनस 4। अरे समझ में आ रहा है ना प्रभाकर? प्रभाकर यस सर। सुन रहे हो ना बेटा? हाँ। ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, एच एन एक्स कितना हो गया,
ये 2x की पावर n ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। अरे सही है ना। ऑलराइट, अब मेरे को क्या करना है यहाँ पर, माइनस n n-1, एक 2 है, ये देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरे सब के हर टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा, तो कितना होगा 2 रेस्ट पावर n, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन एक पावर 2 की नीचे है तो ऊपर चले जाएगी, ठीक है ना, ये 2 पावर में है ना। अरे समझ में आ रहा है, अरे इसको सिंपल ये लिख सकता हूँ मैं, ये 2 n इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 2 की पावर n-2 लिख सकता हूँ यहाँ पर, ये 2 टर्म है यहाँ पर, ये यहाँ चले जाएंगे माइनस, इसको मल्टीप्लाई करूंगा ये ऊपर आ जाएंगे नेगेटिव पे। ये समझ पा रहे हो? किसी के समझ में नहीं आया तो बोलो भाई। यस सर। ये 2 टू द पावर 2 है, ये 2 टू द पावर n है, ये ऊपर चले जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा कितना 2 रेज़ टू पावर n-2 हो जाएगा ना ये, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, ये भी x है तो ये कितना हो जाएगा 2x की पावर, दोनों को मैं एक साथ लिख देता हूँ n-2, और ये यहाँ से ही गायब हो गया। तो इसको जस्ट रेसिड्यू के लिए मैं यहाँ पर फैक्टोरियल 1 लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मेरे को बाद में ये जनरलाइज करना था, थोड़ा सा एक इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। तो मैं एजिम्पशन पे समझ में अलग कलर से करना पड़ेगा मेरे को। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ क्या, इसको करो Ctrl+Z, फैक्टोरियल n-2 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी n-2 से, कोई दिक्कत होगी इसमें, क्यों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये फैक्टोरियल है हाँ भाई, ठीक है। अरे भाई सही है ये, मैंने इस टर्म्स में पहले ये तो था जो बचा हुआ है, मैंने क्या किया इस टर्म में जस्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, फैक्टोरियल n-2 से n-2 से, बताऊंगा क्यों बाद में, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं हुई है, कैंसिल आउट भी होगा तो वैल्यू 1 ही रहेगी। अरे डिवाइडेड आइडेंटिटी है ना, किसी टर्म में अगर किसी x में मैं 1 से मल्टीप्लाई 1 से डिवाइड या 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करूँ तब भी तो x ही रहेगा ये, ठीक है। यस सर। तो मैंने जस्ट उसको अलग कलर से डिफाइन कर दिया कि आपको जम्पसन याद रहे यहाँ पर। और रहा रेसिड्यू कितना था 2x की पावर n-2, ठीक है। दूसरा टर्म प्लस ये वाला टर्म, इसमें क्या हो जाएगा देखो, इसमें है n n-1 n-2 n-3, वही टर्म है, यहाँ पर भी 3 टर्म है, ठीक है, ये 3 टर्म है। तो इसको लिखो ऐसे करके, यहाँ पर बचेगा फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 मतलब 2 ही रहा, फैक्टोरियल 1 इज 1, फैक्टोरियल 2 इज 2, अरे फैक्टोरियल 2 का मतलब समझ में आता है ना, 2 × 1, ये इसको ऐसे फैक्टोरियल लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों सिंबल होता है, ठीक है। फैक्टोरियल 2 ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, फैक्टोरियल 2 ऐसा भी लिख सकता हूँ। इसकी वैल्यू कितनी 2 × 1, ये वैल्यू यहाँ पर 2 ही रही, यहाँ पर कितने बच गए देखो, अगर देखेंगे तो 2 4, ठीक है ना, तो यहाँ कितना हो गया 2 की पावर 2 है, अरे इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, इसको देखना है ये क्या है 2^2.2.4 है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2^2.2.2 ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये 2 को मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया, बचा कितना, ये 2 की पावर 4 हो गया, ये दोनों ऐड हो गए तो, अरे समझ में आया? यस सर। हाँ तो और आगे से मल्टीप्लाई में क्या है 2 टू द पावर n है, अपॉन में क्या है 2 टू द पावर 4, तो कितना होगा 2 टू द पावर n-4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं, जस्ट उसको लिखने के लिए इतना x की पावर कितना हो गया n-4, ये 2 को मल्टीप्लाई करने के लिए इतनी कैलकुलेशन नहीं, वैसे इतना मेरे को बताना नहीं चाहिए था, MSc वाले हो आप, इतने समझ में आना चाहिए आपको, खुद से समझ में आना चाहिए, ठीक है। जो 2 बचा था वो फैक्टोरियल 2 लिख दिया मैंने यहाँ पर,
ठीक है। इसमें अजम्पशन करना है। अजम्पशन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि फैक्टोरियल बनाना ना, फैक्टोरियल की डिवाइड के लिए कर रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ एक टर्म, इसको करता हूँ फैक्टोरियल n-4 और से डिवाइड भी कर देता हूँ फैक्टोरियल n-4 से, प्लस सो होने चलते रहेंगे, ठीक है। इतने में किसी को दिक्कत? नो सर। हाँ, तो अब जो नो करना सर। है मेरे को सम अप करना है। सम अप करने के लिए क्या है, देखो सम अप करने के लिए क्या है, एच एन एक्स इक्वस टू ऑल्टरनेटिव टर्म। देखो पहला टर्म पॉजिटिव है, फिर दूसरा टर्म नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव आएगा। समझ में आ रहा है? समीशन को डायरेक्ट रख दो पहले, समीशन अभी रहने देते हैं, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक रेंज जाएगी हमें बता देंगे। समीशन को अच्छे से लिखते हैं, लो इसको एच एन एक्स देखना, ठीक है। मैंने क्या बोला, पहला टर्म पॉजिटिव है, फिर दूसरा टर्म नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव जाएगा। तो ऑल्टरनेटिव के लिए कितना हो गया, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ आर। अगर पहला आर इक्वस टू 0 होगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी सीधे, मतलब 1 हो जाएगा ना। किसी की पावर 0 का मतलब क्या है, 1 प्लस साइन। अगर ये वैल्यू आर इक्वस टू 1 है तो नेगेटिव साइन, ये दिख रहा है नेगेटिव साइन यहाँ पर। अगर आर की वैल्यू 2 हो जाएगी तो पॉजिटिव टर्म, दूसरा टर्म पॉजिटिव हो जा रहा है। तो मैं ऑल्टरनेटिव बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ, एजम्पशन क्या किया मैंने, क्या बोलते 1 टू द पावर के लिए आ ले ले। ये समझ में आया? यस सर। किसी को समझ में नहीं आया तो बोलना भाई। हाँ, ये सिर्फ जस्ट बिकॉज क्योंकि पहला टर्म पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है। तो क्या हुआ, अगर आर की वैल्यू 0 होती है तो फर्स्ट टर्म के लिए ये कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आर की वैल्यू 1 होती है तो नेगेटिव हो जाएगा, आर की वैल्यू 2 होती है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। ये टर्म्स देखो, ये आर की ये अब है नीचे वाला टर्म देखो, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, ऐसी कहता है फैक्टोरियल 3 आता है, फैक्टोरियल 4 आता है, तो कितना आता है नीचे, ये एक और टर्म आ जाता है, क्या लिखते हैं इसको हम, फैक्टोरियल आर, ये वाले टर्म से, ठीक है। ये क्या बनते रहते हैं आगे को, तो फैक्टोरियल आर की फॉर्म पे रहते हैं, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है ना, अगर आर की वैल्यू 0 फैक्टोरियल 1 ही होगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? ये वाला टर्म, ये आर लिख लिया मैंने, ये समीशन के फॉर्म पे ला रहा हूँ इसलिए बेटा, ठीक है ना। और ये टर्म किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, फैक्टोरियल एन को डिफाइन कर रहे हैं। ये किसको डिफाइन कर रहे हैं, ये टर्म्स फैक्टोरियल एन को डिफाइन कर रहे हैं। ये वाला टर्म, ये ऊपर वाले टर्म n(n-1) फैक्टोरियल एन, ठीक। ये किसको शो कर रहे हैं, फैक्टोरियल एन को। नीचे वाला टर्म ये बढ़ते हुए मतलब किसमें जा रहा है, 2, 4, 6, 8 ऐसे बढ़ रहे हैं ना। तो ये कितना था, फैक्टोरियल n-2r के फॉर्म पे। समझ में आ रहा है? अगर r 1 पे है तो 1 टर्म तो ये था हमारा, ये 0 के लिए, ये 1 के लिए है, ठीक है ना। तो कितना जब 2 हो जाएगा तो n-2 दिख रहा है हमें यहाँ पर। और ये पावर कितनी, ये वाली पावर, ये कितनी, 2x की पावर कितना हो जाएगा, n-2r, क्योंकि 2, 4, 6 बन रहा है ना। तो जो ऊपर समीशन फॉर्म था, इसको हमने किस फॉर्म पे ले लिया, थोड़ा स्पेसिंग की दिक्कत हो रही है बेटा, रुकना है, इसको अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं सिंप्लीफाई रूप से ये लिख सकता हूँ, जो आपका एच एन एक्स है, ठीक है, जो आपका, इसको मिटा देता हूँ। ये इन सारे मैंने इंडिविजुअल टर्म्स मैंने कैलकुलेट करके बता दिया तुम्हें। हाँ, अब इसको मैं फाइनली जनरल फॉर्म पे क्या लिख सकता हूँ, एच एन एक्स क्या हो जाएगा आपका, एच एन एक्स आपका हो जाएगा क्या, समेशन -1 टू द पावर r फैक्टोरियल n होल अपॉन फैक्टोरियल r n-2r 2x टू द पावर n-2r, n-2r जा रहा है, ठीक है। अब फैक्टोरियल की फॉर्म पे है, फैक्टोरियल ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए,
फैक्टोरियल नेगेटिव नहीं हो सकता ना। -2r मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो कितना हो गया, n इज ग्रेटर देन 2r, अरे यही तो हुआ, तो r मस्ट बी और r मस्ट बी स्मॉलर देन, वी कैन से देन मस्ट बी n अपॉन 2। तो r की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी, 0 से लेके कहाँ तक जा रही है, 0 से लेके r की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, n हाफ तक। समझ में आ रहा है? ये क्यों लिखा कि फैक्टोरियल कांट बी नेगेटिव, ये इक्वेशन काहे के लिए है, ये किसके लिए, पॉजिटिव फैक्टोरियल के लिए, पॉजिटिव फैक्टोरियल के लिए। ठीक, तो आपकी जो जनरलाइज हर्माइट इक्वेशन बन गई, पॉलिनोमियल बना, वो क्या है ये। अब यहाँ पर इंडिविजुअली आप रख के भी देख सकते हो, ठीक है। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 0, पहला टर्म आएगा, देखो r इक्वल टू 2 की वैल्यू करके देखना, सॉरी 1 रख के देखना, सेकंड टर्म आएगा, तो एक्स एक्सपेंड करते रहोगे तो इक्वेशन बन जाएगी, ऐसी पॉलिनोमियल आएगा, ठीक है। सो दिस इज योर हर्माइट पॉलिनोमियल। व्हाट वी हैड स्टार्टेड, कहाँ से शुरू करके गए थे भाई, हम यहाँ से लेके चले, हमने सिलेबस देखा था, देन आफ्टर वी हैड डिफाइंड अ हर्माइट इक्वेशन and then we need to calculate the solution for that differential equation। तो हमने एक डिक्रीजिंग ऑर्डर का हमने क्या लिया, सॉल्यूशन लिया, उसके अकॉर्डिंग हमने कोफिशिएंट निकाले, सब्स्टिट्यूट करा और वैल्यू कैलकुलेट करा। ये जनरलाइज फॉर्म, बेटा इसको देख लेना, अगर ये समझ में नहीं आएगा ना तो वापस से देख लेना है, ठीक है। ये एजम्पशन है, ये एजम्पशन जस्ट टू सिंप्लीफाई, इसको किसके समेशन फॉर्म में लाने के लिए ये सब किया है, ठीक है। अगर आपको इंडिविजुअल वैल्यू रखनी है यहाँ पर देख लेना, ठीक है। हेलो, यस सर। सो दिस इज योर हर्माइट पॉलिनोमियल। सर एक छोटा सा सिली क्वेश्चन था,